کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو پکشیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کومل چڑیا کا پتی بنٹی 2 سال پہلے ودیش کے جنگل گیا تھا تاکہ وہ اپنے پریوار کے لیے خوشیاں خرید سکے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ پیچھے اس کی ماں ساوتری کومل کی زندگی کو نرک بنا دے گی۔ اے ہواؤ، کیا میرا کوئی سندیش میرے پتی تک پہنچا سکتی ہو؟ اسے کہنا کہ اس کی کومل اب ٹوٹ رہی ہے، اس کی ماں کا ظلم اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا رونے لگتی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی ساوتری ساس کا شور پورے جنگل میں گونجنے لگتا ہے۔ وہ ایک نرم گھونسلے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ڈھیر سارے میٹھے پھل تھے۔ ارے کومل، کہاں مر گئی؟ سورج سر پر آ گیا ہے اور ابھی تک تو نے ندی سے تازہ پانی نہیں لایا، اور میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، آ کر ذرا مالش کر دے۔ کومل چڑیا اپنے بیٹے ببلو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ اپنی ساس کے پاس جاتی ہے۔ ماں جی، ببلو کو بہت تیز بخار ہے، میں اسے ایسے چھوڑ کر ندی پر نہیں جا سکتی۔ اگر تھوڑا سا دانا ہے تو میرے بیٹے کے لیے دے دیں، کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا، تیرے لاڈلے کو بخار ہے تو میں کیا کروں؟ یہ دانے اور میٹھے پھل میرے بھتیجے بادل اور اس کی پتنی بجلی کے لیے رکھے ہیں۔ آج وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، تو ماں بیٹے جیسے منحوسوں کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جا، ابھی جا کر پانی لے کر آ، ورنہ گھر سے نکال دوں گی۔ کومل چڑیا چپ چاپ روتی ہوئی وہاں سے مٹکا لے کر چلی جاتی ہے۔ ندی پر بیٹھی چڑیا رو رہی تھی، تبھی کبوتر اور طوطا وہاں آتے ہیں۔ کیا ہوا چڑیا بہن، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا بتاؤ طوطے بھیا، میرے بیٹے ببلو کو بہت تیز بخار ہے، اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ چپ کر جائیے چڑیا بہن، مجھے پتا ہے تمہاری ساس بہت ظالم ہے، اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہوگا۔ میرے پاس یہ میٹھا پھل ہے، تم رکھ لو، جا کر ببلو کو دے دینا۔ کبوتر بھیا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ دونوں کی وجہ سے ہی تو میں آج زندہ ہوں، ورنہ بھوک کے کارن تو میں اور میرا بیٹا کب کا مر جاتے۔ پھر کومل چڑیا پانی اور میٹھا پھل لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ چپکے سے اپنے بیٹے کو وہ میٹھا پھل کھلاتی ہے۔ یہ لو میرے ببلو، جب تمہارے بابا آئیں گے تو تمہارے لیے ڈھیر سارے میٹھے پھل لائیں گے۔ ببلو وہ میٹھا پھل کھا لیتا ہے۔ کومل چڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلی صبح بادل کوا اور بجلی کا بھی آ جاتے ہیں۔ چڑیا کی ساس انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ انہیں طرح طرح کے میٹھے پھل کھلاتی ہے۔ بادل اور بجلی صرف ساوتری کے پیار کے نہیں بلکہ اس کی جائیداد اور ان پیسوں کے بھوکے تھے جو بنٹی چیڑا ودیش کے جنگل سے بھیجتا تھا۔ خالہ جان، آپ بہت بھولی ہے۔ یہ کومل روزانہ طوطے اور کبوتر سے ملتی ہے اور آپ کی خوب شکایتیں کرتی ہے۔ یہ تو چاہتی ہے کہ بنٹی واپس آ جائے اور پھر یہ دونوں مل کر آپ کو اس گھر سے باہر نکال دیں۔ ہاں خالہ، یہ چڑیا بہت منحوس ہے، جب تک یہاں ہے آپ کی صحت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں اسے کہیں ایسی جگہ پر بھیج دے جہاں سے یہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ لیکن بادل بیٹا، میں کہاں بھیجوں اس منحوس کو؟ خالہ جان، آپ چنتا کیوں کرتی ہیں؟ میرے پاس ایک پلان ہے۔ ایسا کہتے ہوئے بجلی کا بھی چڑیا کی ساس کو کچھ بتاتی ہے۔ رات ہوتے ہی آسمان پر بادل گرجنے لگتے ہیں اور کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ چڑیا کی ساس اپنی بہو کو پاس بلاتی ہے۔ بادل اور بجلی بھی پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ دیکھ کومل، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے کو کھانا اور دوا دوں تو تجھے ابھی ندی کے اس پار کالے غار میں جانا ہوگا۔ وہاں ایک نیلا موتی ہے جو میری بیماری کا علاج ہے۔ مجھے کافوں نے بتایا ہے کہ اگر میں اس نیلے موتی کا پانی پیوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو جا، ابھی اسی سمے جا اور جا کر وہ نیلا موتی لے کر آ۔ اگر نہ لائی تو اسی سمے تجھے اور تیرے بچے کو اس طوفانی رات میں باہر نکال دوں گی۔ ماں جی، اتنی رات کو؟ آپ کو تو پتا ہے جنگل میں بہت تیز ہوائیں ہیں اور بارش بھی،
ऐसी हवाओं में उड़ना बहुत मुश्किल है और काली कार तो नदी के उस पार है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। देखा खाला जान, आपकी बीमारी की इसे कोई चिंता नहीं, ये तो चाहती है कि आप मर जाएं। ऐसे बिजली का भी चिड़िया की सास को भड़का रही थी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। कोमल चिड़िया अपने जिगर के टुकड़े को भूखा और बीमार देखकर खामोशी से तूफान में निकल जाती है। हवा बहुत तेज थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी। नदी का पानी भी शोर मचा रहा था। कोमल चिड़िया बारिश में भीगती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। ए ऊपर वाले, माँ जी ने मुझे किस मौत के मुंह में भेज दिया है, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ती है, लेकिन हवा के एक तेज झोंके से वो नदी में गिर जाती है। कोमल चिड़िया नदी के बहाव में बह जाती है। तभी तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आते हैं और वो चिड़िया को नदी से बाहर निकालते हैं। कोमल की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन इसके दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी कि इसका बच्चा भूखा और बीमार है। दूसरी ओर बादल जोर से गरजते हैं और बिजली चिड़िया की सास के घर की छत पर गिरती है। सावित्री का घर तो जलने लगता है। छत का एक हिस्सा टूटकर सावित्री पर आकर गिरता है। बादल, बिजली, मुझे यहाँ से बचाओ, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगी, मेरे पंख जल रहे हैं। वहीं दूसरे कमरे में बबलू भी रो रहा था और अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रहा था। माँ बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? बिजली और बादल चिड़िया की सास के सारे गहने एक पोटली में डाल लेते हैं। अरे बुढ़िया, अब हम तुम्हें क्यों बचाएं? सारा माल तो हमारे हाथ लग गया है। अब तुम मरो या जियो, हमें इससे क्या। चलो बादल जी, हम तो चले। ऐसा कहते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया घायल हालत में पक्षियों के साथ अपने घर पहुँचती है तो वो कांप जाती है। वो घर में जाने की कोशिश करती है। कोमल बहन, अंदर मत जाओ, सब खत्म हो चुका है। नहीं तोते भैया, मेरा बच्चा अंदर है, मेरा बबलू तड़प रहा है। अगर मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। घर में तो हर तरफ आग लगी हुई थी। अरे बहू, तू आ गई, बचा ले मुझे। कोमल चिड़िया अपनी सास को बाहर निकालती है और फिर आग को चीरती हुई अपने बेटे तक पहुंच जाती है। बबलू, मेरी जान, देखो तुम्हारी माँ आ गई है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने बेटे और सास को लेकर घर से बाहर आती है। आग के शोले और तेज हो जाते हैं। देखते ही देखते उनका घर पूरी तरह से जल जाता है। वो सब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी बंटी चिड़ा भी आ जाता है। ये सब क्या है और कैसे हो गया? फिर चीकू तोता सारी बात बंटी को बताता है। माँ, आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? देखिए, मेरी पत्नी ने आपको जिंदगी दी और आप इसे मौत के हवाले कर रही थी। चिड़िया की सास रोती हुई कहती है, बेटा बंटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरों की कदर नहीं की और कोयलों को अपने सीने से लगाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोमल चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है। दूसरी ओर बिजली और बादल वो पोटली लेकर भाग रहे थे कि रास्ते में एक शिकारी बाज उन पर हमला करता है। वो सारा खजाना लूट लेता है और उन कौवों को मार देता है। ऐसे बादल और बिजली को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सच्चाई का सूरज जरूर निकलता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के इस घने पेड़ पर जहाँ कभी खुशियाँ बसती थीं, आज वहाँ जुल्म का राज था। सावित्री सास, जिसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे बादल कौवे को पालने में गुजार दी थी, आज उसी घर में एक गैर की तरह रह रही थी। बेटी, पिछली बेटी, क्या थोड़ी सी आग जला दोगी?
बहुत सर्दी लग रही है, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। बिजली कभी दूसरे कमरे में अपने पंखों को चमका रही थी और मीठे फल खा रही थी। वो गुस्से में चीखती हुई अपनी सास के पास आती है। आग चाहिए, क्या मैं तुम्हारी यहाँ नौकर लगी हूँ? सारा दिन तुम्हारी खांसी सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अगर इतनी ही सर्दी लग रही है तो जाओ सूरज के पास जाकर बैठ जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कौवा शाम को घर लौटता है तो इसकी चोंच में एक ताज़ा और मीठा फल था। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है लेकिन बिजली इसे रास्ते में ही रोक लेती है। बादल कौवा अपनी पत्नी के प्यार और गुस्से में ऐसा झगड़ा हुआ था कि इसे अपनी माँ के आंसू नजर नहीं आते थे। बिजली देखो, माँ कितनी कमजोर हो गई है। ये फल मैं इनके लिए लाया हूँ ताकि इन्हें कुछ ताकत मिले। बिजली कभी वो मीठा फल छीन लेती है। ताकत? इन्हें ताकत देकर क्या करना है ताकि ये और 10 साल जिंदा रहे और हमें जलील करे? ये मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी। वो पुराने सूखे दाने पड़े हैं ना, वही दे दो अपनी माँ को। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कभी की माँ पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और रो रही थी। बेटा बादल, क्या तू भी अपनी माँ को इस हाल में देखेगा? यही दिन देखने के लिए मैंने भूखा रहकर तुझे पाला था। बादल कौवा नजरें चुराकर दूसरे कमरे में चला जाता है और बूढ़ी माँ रोती रह जाती है। रात हो जाती है और जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कभी को अपनी सास की खांसी से चिढ़ थी। एक तो ये बुढ़िया रात को सोने भी नहीं देती, सब और बर्दाश्त नहीं होता, अभी इसे घर से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी सास का पंख पकड़ती है और उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकालती है। निकल जा मेरे घर से, तेरी खांसी की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। जाओ नदी के पास उस खोखले पेड़ में रहो, अब तुम्हारा वही ठिकाना है। बेटी, बारिश हो रही है, इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी? मुझे बस एक कोना दे दो, मैं वहीं पड़ी रहूंगी और आवाज भी नहीं निकालूंगी। चुप कर जा, अब एक और लफ्ज मत बोलना वरना मैं तेरे बचे हुए पंख भी नोच लूंगी। चली जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए बिजली कभी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। सावित्री सास भीगती हुई लड़खड़ाती हुई नदी की तरफ चली जाती है। तोता ये सब देख रहा था। वो रोते हुए चिड़िया के पास जाता है और कोमल चिड़िया को सारी बात बताता है। तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कभी इतनी सालिम निकली, उसने अपनी सास को इस हालत में घर से बाहर निकाल दिया है, फिर जरा भी रहम ना आया। मैं अभी चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया नदी की ओर चली जाती है जहाँ बूढ़ी सावित्री एक खोखर में बैठी रो रही थी और कांप रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, चलिए मेरे साथ चलिए। फिर कोमल चिड़िया बिजली कभी की सास को लेकर अपने घर आ जाती है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो जुल्म सावित्री पर हुआ था कुदरत इसे दोहराने की तैयारी कर रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं। बिजली कभी की सास मर चुकी थी। बादल और बिजली भी अब बूढ़े हो चुके थे। बिजली का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ उसी घोंसले में रहता था। अरे बुढ़िया, ये बर्तन तुमने साफ क्यों नहीं किए? सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कुछ काम भी कर लिया करो। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो। इज्जत? मैं तुम्हारी इज्जत करूँ? पति ने मुझे बताया था कि तुमने अपनी सास को बारिश में बाहर निकाला था। जब तुमने अपनी सास को कोई इज्जत नहीं दी तो मुझसे क्यों उम्मीद रख रही हो? चलो दफा हो जाओ मेरे घर से और चली जाओ उसी नदी के पास वाले पेड़ की खोखर में। ऐसा कहते हुए बिजली की बहू उसे घर से निकाल देती है। बिजली कभी रोती हुई उसी पुराने खोखले पेड़ में चली जाती है जहाँ बरसों पहले सावित्री बैठी थी। बारिश फिर से शुरू हो जाती है और उसे अपनी सास की याद आ रही थी। मैंने कितना बड़ा पाप किया, अपनी सास के आंसुओं की परवाह नहीं की। आज मेरी अपनी संतान ही मुझे ठोकरें मार रही है।
ऐ ऊपर वाले मुझे मौत दे दे, ये जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है। कोमल चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो कवि को देखकर वहाँ आती है। बिजली, ये आंसू अब किसी काम के नहीं। जो दर्द तुमने दूसरों को दिया, अब वो तुम्हारा नसीब है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप और सास ससुर की खिदमत को बोझ मत समझो। ये वो दुआएं हैं जो तुम्हें तूफानों से बचाती हैं, और इनकी बद्दुआएं वो आग हैं जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को जला देती हैं। याद रखें, आपकी संतान वही सीखती है जो आप अपने बड़ों के साथ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन बिजली कवि के सर पर मिस जंगल बनने का भूत सवार था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। बिजली कवि शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बादल से कहती है, बादल, देखो मेरा रंग कितना काला हो गया है। पड़ोस वाली कबूतरी तो दिन ब दिन सफेद होती जा रही है और मैं कोयले की कान लग रही हूँ। अपनी पत्नी के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बिजली, तुम काली हो तो क्या हुआ, दिल वाली तो हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और तुम्हें गोरा करने के लिए कोई क्रीम लेकर आता हूँ। बादल कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। वो पूरी बस्ती में उड़ता फिरता है। तभी उसकी नजर कचरे में पड़ी हुई एक क्रीम पर जाती है। तुरंत वहाँ जाता है। अरे, ये इंसान भी कितनी चीजें फेंकते हैं। ये सुनहरी डब्बी में क्या है? इस पर तो किसी गोरी मेम की तस्वीर बनी है। वाइट एंड ब्यूटीफुल। वाह वाह, ये मेरी बिजली के लिए ठीक है। अब मेरी बिजली भी गोरी हो जाएगी। बादल कौवा वो क्रीम की डिबिया उठाता है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो क्रीम 10 साल पुरानी है और एक्सपायर हो चुकी है। देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बिजली, तुम भी अब इस गोरी मेम की तरह गोरी हो जाओगी। बिजली कवि ये देखकर बहुत खुश होती है। बादल जान, तुम मेरे हीरो हो। अभी देखना, मैं इसे लगाऊंगी और पूरे जंगल के पक्षी मुझसे जलेंगे। फिर बिजली कवि वो बदबूदार क्रीम उठाती है और अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। बिजली, ये क्रीम आँखों पर नहीं लगानी। बादल जी, तुम क्या चाहते हो कि मेरी आंखें काली ही रहें? मैं पूरी गोरी दिखना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद बिजली कवि के मुंह से धुएं उठने लगते हैं। हाय हाय बादल, ये कैसी क्रीम है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर मिर्चें छिड़क दी हो। हाय मेरी आंखें। बादल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला हो गया है और बहुत जलन हो रही है। क्रीम के रिएक्शन से बिजली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबराकर उड़ती है तो सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिर जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी सूप पी रही थी। हाय हाय, मैं मारी गई। ये कौन सा काला तूफान मेरे घोंसले में घुस आया है? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुलबुल बुलबुल बहन बचाओ, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो सीधी जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है। अब तो बिजली का चेहरा और भी चिपचिपा हो गया था। वो वहाँ से भागती है और शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती है। भागती भागती वो चिड़िया के घर घुस जाती है, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बैठे हुए थे। वो तीनों बिजली को देखकर हंस रहे थे। पीछे से बादल कौवा रोता हुआ उनके पास आता है। चिड़िया बहन, तोते और कबूतर, मेरी बिजली को बचा लो। मैं तो इंसानों वाली क्रीम ला कर दी थी अपनी पत्नी को ताकि इसका रंग गोरा हो जाए, मगर मुझे क्या पता था कि ये क्रीम अपना उल्टा असर दिखाएगी। हाँ दोस्तों, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही है। तौबा तौबा बादल, ये क्रीम नहीं जहर बन चुका है। अगर इसका इलाज अभी ना किया तो जिंदगी भर सिर्फ बिजली ख्वाबों में ही खुद को गोरा देख पाएगी। बादल बेचारा डर जाता है और तोते के पाँव पकड़ लेता है। बादल, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आंखें वापस लाने के लिए
कीचड़ में 3 दफा गोते लगाने होंगे। और हाँ, गोते के दौरान काय काय करना ना भूले। और फिर इसे कड़वे नीम का शरबत पीना होगा ताकि इस क्रीम के असर के सारे जरासीम मर जाएं। हाँ बादल, तोता ठीक कह रहा है। और फिर इसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देना, ऐसे बिजली की आंखों की रोशनी जल्दी लौट आएगी। फिर बादल कौवा बिजली को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अरे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ये कौवे हमें हमेशा तंग करते हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। फिर बादल कौवा बिजली को नदी पर ले जाता है और कीचड़ में नहलाता है। बिजली, जोर जोर से गोते लगाओ और काय काय बोलती रहो। बिजली कभी आंखें बंद करके कीचड़ में गोते लगाती है। बिजली, क्या तुम्हें नजर आना शुरू हुआ? नहीं बादल, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दूं ताकि जल्दी तुम्हारी आंखें खुल जाए। फिर बादल कौवा बिजली कौवे को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिजली को देखकर हंसते हैं। बिजली कौवे की हालत तो अब बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बस करो, बिजली को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक ठंडे पानी की बाल्टी बिजली कौवे पर डालती है और बिजली कौवे की सारी क्रीम उतर जाती है। ठंडे पानी से क्रीम का असर खत्म हो जाता है और बिजली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। वो सामने बादल को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। बादल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कचरे वाली क्रीम दी तुमने मुझे। आज मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी और तोते कबूतर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बिजली कौवे गुस्से में बादल कौवे के पीछे पीछे उड़ती है और बादल बेचारा पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है। तोता और कबूतर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सवित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा, अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कौवों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियाँ होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कौवे के पास। मैं जानता हूँ वो कौवे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कौवों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा।
हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कव्वे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कप्पों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है। क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है, सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कव्वों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कव्वे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दूं? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन कव्वों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कव्वों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है। देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कव्वों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय, मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बुढ़िया, अब बारिश में नहाओ। मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो कव्वे वहाँ से चले जाती हैं। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये सब किया धरा इन काले कव्वों का है। वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है, जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं। ऐसा कहते हुए चील उन कव्वों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन सबको अपने घर में ले जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पंखों के बने हुए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी बनाती हूँ।
फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और सभी पक्षियों के लिए पकोड़े बनाती है। फिर वो सभी दोस्त पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोस्तों, बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कफे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी माँ, आप चिंता नहीं करें, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कफे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच आ गया है। माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल का पा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ, बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कफे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ। जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊँ? बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की जान नहीं बचाना चाहता? हाँ माँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर बादल का पा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कफे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल का पा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कफे की पूंछ वहीं रह जाती है और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कफी के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ की पर कहाँ गई? नीली, वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे। उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल का पा अपने घर चला जाता है। हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुम लाई हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया, देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा, कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है, बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल का पा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर
बिजली कभी भी हंसने लगती है। वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाए जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस बस बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कव्वे की खूब पिटाई करती है। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कव्वे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कव्वे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है, हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली, मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कव्वा नीली कव्वे से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कव्वा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कव्वे सो जाती है तो बादल कव्वा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कव्वा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कव्वा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कव्वा हंसता हुआ नीली कव्वे के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कव्वे घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कव्वे अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही, मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था,